Second year? Second year, just tell me. Can you listen me? Yes. Okay. Thank you. Thank you, Sayyid Umaid, Tehreem, Tahira, everyone. Hello. Okay. Thank you very much. Now, now I am starting my lecture. Wherever you have any problem, kindly tell me with the message so that I will clear it at that time. Okay? Just send me a message. How many students are there? Participants are only 21. Why 21? Where are the remaining people? Okay. Now I am starting my lecture. Today, you have completed your section C of psychology. Now we will go towards sociology. Sociology, obviously, as a doctor, as a BTS student, MBBS student, you have a different experience to study the sociology, and even you can say that there is no logic to study it. But beta, social factor and culture factor, they affect on health belief model, on treatment adherence, and for the different diseases, your culture and social factors affect. So, sociology is very important. As per for your previous knowledge, biopsychosocial model, bio, biology is must. उसको हम being a BDS student or medical student, उसको तो आप बिल्कुल डिनाई कर नहीं सकते. But social factor and psychological factors that also affect on the disease prevalence, on the health matters, on treatment adherence. Is it? Now, how it affects? Now we will study. You will, if you are boring somewhere, just tell me. I will tell you any example or any example or any good thing related with culture and social factors, so that will make an interest. Yeah, you know, the basic unit is family. When a child born, he or she obviously adherent to his or her parents, और जो फैमिली होती है वो क्लोज वन होती है. आपके पेरेंट्स हैं, आपके बहन भाई हैं, जो कि आपके ऊपर इफेक्ट करते हैं. देयर इज नो रोल ऑफ peers, नो रोल ऑफ schooling and neighborhood at that time. Eh, Now, look at this picture. The individual microsystem. Microsystem is when you are adhering to your family, you are adhering to your family and your parents. Just that is your microsystem. Mesosystem, when you are adherent, when you go to school, having peers, neighborhood, and other family members, you interact with other family member. These are like your like your parents who are family members who are not at home. They are outside the home, uncles, aunties, neighborhoods. That is mesosystem. Exosystem is when your graph is uh, your graph is more enhanced. ठीक है, जहाँ पे आप मास मीडिया, सोशल वेलफेयर सर्विसेज, लीगल सर्विसेज, जहाँ पे आपको रूल्स रेगुलेशन सिखाए जाते हैं, उनका पता चलता है, और आपको ओबे करना होता है स्कूल के रूल्स को, रोड के रूल्स को, और मीडिया के ऊपर आप जो कुछ सीख रहे होते हैं. दीज आर आर योर एक्सोसिस्टम. Then your macro system is attitude and ideology of culture, the culture where you are living.
उसके ऊपर रिलीजन का भी इफेक्ट होता है, कल्चर का भी होता है। यू नो द पीपल हु आर लिविंग इन इंडो पाक, दे हैव सेम कल्चर बट रिलीजन डिफरेंट है, तो सो रिलीजियस इफेक्ट भी है आपके ऊपर और कल्चरल इफेक्ट भी है। सो दैट वी से दैट हमारी बहुत सारी ऐसी हैबिट्स होती हैं जो कि कंसर्न होती हैं कि हम कहते हैं ये दीज हैबिट्स आर फ्रॉम योर फ्रॉम इंडियन कल्चर, बिकॉज वो एक कंबाइंड आपका कल्चर रहा है और उसका इफेक्ट अभी तक है। बट इज सोशियोलॉजी, sociology is scientific study of pattern and system of human interactions. It is undertaken by focusing on the social structure of society and social interaction among its inhabitants. Now, अब आप ये कहोगे कि ये तो सारी सोशियोलॉजी है, यहाँ पे हमारी डिजीजेस का क्या है? बीइंग अ डॉक्टर हम इसको बेसिकली बेटा हमारा जो सोशल और कल्चर वैल्यूज होती हैं वो हमारी डिजीज के ऊपर इफेक्ट करती हैं। व्हेन देयर इज और प्रिवेलेंस ऑफ डिजीज को इफेक्ट करती हैं, आपकी इम्यूनिटी की सिस्टम को अनाउंस करती हैं, एनहांस करती हैं और सब समटाइम्स सप्रेस करती हैं। तो इट इज ऑल ड्यू टू योर सोशल फैक्टर एंड कल्चर। बट बायोलॉजिकल फैक्टर मेन फैक्टर है, उसको हमने नहीं भूलना। दीज आर 2+ factors. Okay, biopsychosocial model. Now come role of sociology in behavior sciences to study the social factor in health and disease. हमें ये पढ़ना है। बेसिकली क्या होता है, आपका पूरा का पूरा जो सिस्टम है दैट इज बायोलॉजिकल, सोशल एंड कल्चरल, लाइक एंथ्रोपोलॉजी। ये जो तीनों के तीनों सिस्टम है ये आपकी डिजीज के ऊपर कैसे अफेक्ट करते हैं, उस डिजीज को कैसे इसकी प्रिवेलेंस होती है, और आपका हेल्थ बिलीफ मॉडल अकॉर्डिंग टू योर कल्चर होता है। You know, in Eastern culture or in Indo-Pak, in all Eastern culture, हमारा हेल्थ बिलीफ मॉडल है कि हम स्टार्ट करते हैं अपनी medication when you have a minor illness. Always start with some टोटका and some देसी medicine, अदरक का पानी पी लो, like जोशांदा ले लो। these are all बेसिकली होम्योपैथिक इफेक्ट। होम्योपैथिक ये हमारे कल्चर का हिस्सा है, तो हम समटाइम्स दीज आर बेनिफिशियल, दीज थिंग्स आर बेनिफिशियल एंड समटाइम्स दीज आर हार्मफुल। As you have studied in your first chapter, second year, are you with me? No response. आपके रिजल्ट में भी मुझे अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, यहाँ भी अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा। टर्न ऑफ योर कैमरा मैम। ओके ओके बेटा। इट्स ओके, नो इट्स ओके बेटा। Yes, okay. Now, all of you know that disease is undesirable biological process or state affecting the individual. Disease, if there is some pathology, okay, if there is some pathology, then we say that it is disease. Illness has a different definition. Is the personal experience of disease including its social and psychological impact. No, what is illness? Illness में आपके social और psychological impact include हो गए हैं, जबकि disease क्या है? Disease only biological factors हैं, pathology inside है। इज इट राइट? आप जो सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर है आप कभी जब इंशाल्लाह when you will practice in your clinic or hospital, you will see that patient will come who will say ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ बीमार जी रहनी आ, डॉक्टर साहब मूंह ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੈਲ ਆਂਦੀ ਏ,
where there is no pathology but patient is ill. वो बीमार जी रहने वाला जो एक कॉन्सेप्ट है ना, बेसिकली दैट इज इलनेस, जिसके ऊपर सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं। इंट्रापर्सनल कन्फ्लिक्ट हैं उसके, इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट हैं। शी इज नॉट हैप्पी इन हर लाइफ और हर आर हिज लाइफ। एक मेल है, ओवरबर्डन है, ठीक है, वो बहुत सारे बच्चों का खर्चा उठा रहा है, पेरेंट्स का उठा रहा है, वो ओवरबर्डन है, कोप नहीं कर रहा ये सारी की सारी जो सोशल फैक्टर्स उसके पास हैं, और इकोनॉमी को वो उसकी इकोनॉमी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा। तो एट दैट टाइम उसको साइकोलॉजिकल फैक्टर और सोशल फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं। अब जब सोशल फैक्टर और साइकोलॉजिकल फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं तो व्हाट विल हैपन, दिस विल बी इलनेस। ठीक है, पैथोलॉजी भी हो सकती है, आई एम नॉट सेइंग कि पैथोलॉजी यहाँ पे नहीं है, माइनर पैथोलॉजी भी हो सकती है, बट मेन फैक्टर्स आर सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर विच आर कॉजिंग द इलनेस। अंडरस्टैंड बेटा, डिफरेंस पता चल गया इलनेस एंड डिजीज का? ओके now determinant of health, education, income. All of you know that education influence the onset of chronic disease, इनकम। आपके पास अगर कोई वेल ऑफ है तो वो अपनी ओरल हाइजीन का भी ख्याल रखेगा, ओरल हाइजीन का भी रखेगा, अपनी मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखेगा, अपनी जो बाकी डिजीजेस हैं उनको भी, मॉर्बिडिटी ज़्यादा रिपोर्ट होगी, अपनी जो डिजीज है उसको एट अर्ली स्टेज क्या है कैप्चर करेगा, उसका इलाज करवाएगा। इफ he is educated, he or she is educated or aware of his disease or income. The second when you are paying in all countries, even when you are paying lot of money for your dental or oral hygiene and dental and oral procedures, then only well of people will afford that. ओके तो ये जो चीज है, ये जो दोनों की दोनों आपकी हेल्थ डिटर्मिनेंट हैं, एजुकेशन एंड इनकम। कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी, इन दैट आर्टिकल उसमें ये था कि आपका जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम ओवरऑल एंड टोटली इट डिपेंड्स अपॉन योर स्टमक। ऑन स्टमक मीन्स योर डाइजेशन सिस्टम। और डाइजेशन सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है? फ्रॉम योर ओरल कैविटी। और ओरल कैविटी का बहुत इम्यूनिटी के ऊपर बहुत बड़ा अफेक्ट है। इफ आपकी एनी डिजीज विच इज रिलेटेड विद योर गम्स, योर टीथ, योर ओरल कैविटी, that will affect your health, your immune system, so that आप पूरा एक डिपार्टमेंट है, ये this is a uh, independent science, independent department. It is not a part of MBBS, but it is BDS is a great part where you are covering main immune system, which is affecting on all diseases. वो जो immune system जो oral cavity से स्टार्ट होता है, जिसको हम डील कर रहे हैं, जिसकी हम केयर कर रहे हैं, जिसको हम ट्रीट कर रहे हैं, बेसिकली ये होल बॉडी के ऊपर आपका अफेक्ट करता है। दैट्स व्हाई इट इज अ इंडिपेंडेंट साइंस, इंडिपेंडेंट लाइक एक डिपार्टमेंट है। नाउ हाउ हेल्थ इज अफेक्टेड, आपकी हेल्थ कैसे अफेक्ट होती है, सोशल फैक्टर कैसे अफेक्ट करते हैं? And the poor have greatest exposure to the risk factors that cause ill health. Physical factor, poor sanitation, poor housing, chemical factor, pollution आ जाती है। Biological factor में बैक्टीरिया, वायरसेस, एक्सपोजर ज्यादा होगा। जो पुअर है, वायरसेस तो खैर सॉरी टू से किसी को नहीं छोड़ता, वो अमीर गरीब डॉक्टर इंजीनियर किसी को नहीं छोड़ा, यू नो
today's situation, कोरोना वायरस, इट इज अफेक्टिंग. आपको सिर्फ केयर करनी है, सिर्फ केयर करनी है. केयर योर सेल्फ, केयर योर फैमिली, केयर योर सराउंडिंग. और बीइंग अ डॉक्टर आपको मोर रिस्पॉन्सिबल होना है. बट होता क्या है, इवन इन कोरोना व्हाट हैपन्स कि आपका वायरस जब अफेक्ट कर देता है, तो वायरस उसके बाद जब आपके लंग्स तक जाता है, तो अब रोल बैक्टीरिया का भी आ जाता है. उसकी जो बाकी कंडीशंस हैं, बेटा आर यू लिसनिंग मी? तहरीम, सना, कैन यू लिसन? ओके, थैंक यू. Economic, low income, healthy job, lifestyle, poor diet, smoking, all these things badly affect on your health. Okay, that's why these are all social factors which are affecting the health of any person. No, major criteria for social class. No, sorry, सोशल फैक्टर के बाद आपका क्या होता है, सोशल क्लासेस हैं. हमारी सोसाइटी डिफरेंट क्लासेस में, डिफरेंट ग्रुप्स में, हमारी सोसाइटी नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसा होता है कि डिफरेंट ग्रुप्स हैं जिसमें डिवाइड हुई हुई है. और वो जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं कैसे आपको अफेक्ट करते हैं, आपकी हेल्थ को कैसे अफेक्ट करते हैं. सोशल क्लासेस, डिफरेंट सोशल क्लासेस की डिफरेंट डिजीजेज होती हैं. हायर क्लास की और डिजीजेस हैं, लोअर क्लास की और डिजीजेस हैं. हायर क्लास की ज्यादा डिजीजेस, मेंटल इलनेस आर मोर कॉमन इन हायर क्लास. आगे आगे हम पढ़ेंगे, अभी फैमिली स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि व्हाई द मेंटल डिजीजेस आर मोर common in higher class. And other the cardiac diseases are even hypertension is more in higher class. और lower class की क्या diseases हैं? A large scale grouping of the people who share the common resources which strongly influence the type of lifestyle they are able to lead. एक क्लास का ऑलमोस्ट एक ही स्टाइल होता है, लाइफस्टाइल एक होता है. अब क्या है, सोशल क्लास का क्राइटेरिया क्या होता है? आपके सोशल क्लास का मेनली अथॉरिटी. आप ब्यूरोक्रेट हो, आप कहीं पे ऑफिसर लगे हुए, हाउ मच अथॉरिटी यू हैव, पावर, पॉलिटिकल पावर, इकोनॉमिक, कितने अमीर हो, मिलिट्री, आर्मी पावर आपके पास, ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जिसमें फैक्ट्रीज, लैंड्स होती हैं, इनकम होती है, कंजप्शन पैटर्न एंड लाइफस्टाइल, रिच और फेमस, आप कितने रिच हो, फेमस हो, ऑक्यूपेशन, स्किल, एजुकेशन, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके मेजर क्राइटेरियाज हैं विच अफेक्ट द सोशल क्लास, जो कि इंक्लूड करते हैं लाइक जो ब्यूरोक्रेट होंगे उनकी एक अलग क्लास है, जो कि पॉलिटिशियन है उनकी अलग क्लास है, फैक्ट्री ओनर्स, लैंडलॉर्ड हैं उनकी अलग क्लास है, जिनकी लो इनकम है, हु आर वर्किंग अंडर दीज पीपल, उनकी एक लो इनकम वालों की अलग क्लास होगी, हाई इनकम वालों की अलग क्लास होगी, एजुकेटेड पीपल आर अगेन इन अदर क्लास. अब ये सारी की सारी जो क्लासेस हैं ये आपकी हेल्थ के ऊपर हाउ इट इज अफेक्टिंग. सोशल क्लास ये वैसे इंट्रोड्यूस ही बेसिकली तो हम कहते हैं ना कि दे आर नॉट डिफ्रेंशिएटिंग, वहाँ पे अमीर गरीब का डिफरेंस नहीं है, ऐसा नहीं है. बेसिकली सोशल क्लास का जो कॉन्सेप्ट है इट इज फ्रॉम द ब्रिटिश. जो ब्रिटिश हमारे पास रहे थे उन्होंने ही सोशल क्लास का कॉन्सेप्ट दिया था, और उसी कॉन्सेप्ट की वजह से everyone is struggling for becoming in to entering in higher social class. वो जो दौड़ है ना, पैसे की दौड़,
अथॉरिटी की दौड़, पावर की दौड़, ये बेसिकली देकर ब्रिटिश ही गए हैं हमें, और इस दौड़ में हम पागल अब हो गए हैं। नो द प्रोफेशनल आर, उन्होंने क्लासेस अपनी ऐसे स्केल की हुई हैं जो कि हमने अपनी डिफरेंट बेसिस पे स्केल की हैं, बट उन्होंने अपनी क्लासेस को स्केल किया है लाइक प्रोफेशनल्स, जिसमें आपके लॉयर्स एंड डॉक्टर्स आ जाते हैं, intermediate teachers and nurse, skilled non-manual typist, shop assistant, skilled manual, it is written in your book, carpenter and miner, partly skilled farm worker, unskilled manual, जिसमें आपके क्लीनर एंड लेबरर आ जाते हैं। नाउ अंडरस्टैंड उन्होंने क्लासेस कैसे की हैं, हमें तो वो दे गए हैं ना क्लास, लाइक लैंडलॉर्ड किसी को बना गए और उसको सर का खिताब दे गए, इस तरह की चीजें उन्होंने इंट्रोड्यूस की इसमें इंडो पाक में, बट इन देयर कल्चर क्लासेस हैं, उन्होंने एजुकेशन, स्किल्ड, अनस्किल्ड, उनको अलहदा किया हुआ है, ठीक है, skilled non-manual, skilled manual, but again they have divided the people in different classes. Now हमारा क्या कल्चर है, इंडिया का क्या कल्चर है? Individuals are classified on account of their wealth. Listen, wealth, power, land holding, profession, feudal, businessman, technician, farmer, laborer. Doctors are not included in, if we are not businessmen and not feudal, तो हम दोनों ऊपर की क्लासेस में नहीं आते, हम टेक्नीशियन में आते हैं, ठीक है बेटा, और फिर आ जाते हैं फार्मर और लेबरर, ठीक है। तो अब यू नो दैट कि यहाँ पे ज्यादा जो है आप क्लासिफाइड हो ऑन द बेस ऑफ वेल्थ, पावर एंड लैंड होल्डिंग। No, diseases, how diseases are divided. Cardiac diseases are most associated with modernization and were associated with upper class. Mental illness are more common in higher class. Why it is more common? All of you know that there is less intimacy. वहाँ पे हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम कम है, इवन अगर नेबर्स हैं तो नेबर्स का आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं होता कि दूसरे के घर में क्या हो रहा है, वो किस प्रॉब्लम में है, नो वन नोस। तो एट दैट टाइम क्या है, आपका सोशल इम्पैक्ट, एक दूसरे के ऊपर जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है वो नहीं आ रही। जब साइकोलॉजिकल सपोर्ट नहीं होगी तो मेंटल इलनेस, यू विल गो इन आइसोलेशन, और आइसोलेशन क्या कॉज करेगी, मेंटल इलनेस कॉज करेगी। Poor are more likely to suffer from infectious diseases, chronic diseases. Chronic diseases में इसलिए हो जाते हैं कि because वो at early phase due to low income and less education, early phase में वो disease को pick नहीं करते, और वो they are suffering from the chronic diseases. They are also suffering from mental illness, but less as compared to modern society. The impact of uncertain chronic diseases of the self, impact of chronic diseases on everyday life. कोई भी chronic disease हो, like if someone is suffering from hepatitis C, someone is suffering from tuberculosis, क्या होती है, अर्ली फेजेस पे ये क्या होता है कि इसको डायग्नोस नहीं किया जाता, डिनाइल फेज में होता है, patient is in denial phase, he or she is not accepting it that she is suffering from any chronic disease, any illness like tuberculosis, hepatitis C, AIDS. तो अब बेसिकली क्या होता है, उसको स्टिग्मेटाइज होने का डर होता है, क्योंकि ये डिजीजेस स्टिग्मेटाइज होती हैं, पूरी की पूरी फैमिली को आइसोलेट कर दिया जाता है। आइसोलेशन के अलावा क्या होता है और क्या इफेक्ट होता है, जब आप मेंबर को आइसोलेट तो घर में करते हो, लेकिन इन आवर सोसाइटी क्या होता है, पूरी फैमिली को आइसोलेट कर दिया जाता है, और डिफरेंट मिथ्स हैं, मिसकॉन्सेप्शंस हैं अबाउट डिफरेंट डिजीजेस। सो
क्या होता है कि पेशेंट उसको हिडन रखता है, बहुत देर जब हिडन रखेगा तो क्या होगा, सेम इज विद द कोरोना। अब ये जो कोविड-19 है, यहाँ पे आपको जो केसेस हैं, क्यों आप डेथ्स हमारी ज्यादा हो रही हैं, बिकॉज ऑफ दैट कि वो पहले ड्यू टू स्टिग्मेटाइजेशन इसकी रिपोर्टिंग नहीं हो रही, और अर्ली फेज पे जब रिपोर्टिंग नहीं होगी तो व्हाट विल हैपन, क्या होगा कि वो उस फेज पे आएगा पेशेंट आपके पास हॉस्पिटल में जब उसकी कंडीशन सीवियर होगी, जब उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम इंक्रीज हो जाएगा। सो ये जो स्टिग्मेटाइजेशन है, ये आपकी इलनेस को, नॉर्मल इलनेस को क्रोनिक में कन्वर्ट कर देती है, और क्या करती है, आपकी सेल्फ स्टीम को लो कर देती है। अब इम्यूनिटी भी लो होगी, अब आप उस डिजीज से आपकी लड़ने की जो आपकी सेल्फ आपकी रेजिलियंस कम होगी, तो सो that chronic disease will affect badly. Cultural and behavior explanation of health. Life, lifestyle preference and behavior include such things are the consumption of harmful commodities, refined foods, tobacco, alcohol, leisure time exercises. Obviously, एक वोअर इंसान है, उसके पास लेजर टाइम है ही नहीं, ऑल द टाइम व्हेन ही इज वर्किंग, तो वो आपके पास एक्सरसाइजेस नहीं कर सकेगा, उसके पास अपने आप को देने को टाइम नहीं होगा। अगेन इम्यूनिटी सिस्टम विल अफेक्ट द यूज ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ मेजर्स सच एज कॉन्ट्रासेप्शन, प्रीनेटल मॉनिटरिंग, वैक्सीनेशन। ये बहुत सारे ऐसे कल्चर हैं जहाँ पे वैक्सीनेशन को अच्छा नहीं समझा जाता, और मिथ्स हैं। यू नो दैट हमारे जो है फ्रंटल, ये कौन से हैं एरियाज आपके, पेरिफ्री ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, वेयर देयर इज नॉट इन पिशावर और मेन सिटीज, मैं पेरिफ्री की बात कर रही हूँ, वहाँ पे वैक्सीनेशन को डिफरेंट मिथ्स हैं कि ये अंग्रेज की बेसिकली चाल है, तो वो जब वैक्सीनेशन नहीं होगी तो वो हेल्थ को बुरे तरीके से आप, ये आपका कल्चर है, ये बेसिकली कल्चरल इफेक्ट है विच इज अफेक्टिंग ऑन द हेल्थ। यहाँ पे पोलियो के बहुत सारे केसेस मिलते हैं बिकॉज ऑफ दैट कि आप जब प्रॉपरली उसके ऊपर अडेरेंट ही नहीं हो। Prenatal monitoring, there are some culture where it is not seen good for the patient कि वो बार बार हॉस्पिटल जाए, अपना एंटीनेटल करवाए। एंड में अगर मोस्टली वो एंड पे भी नहीं जाती, होम डिलीवरीज होती हैं, बहुत सारी क्या हो जाती हैं, मोर्टेलिटी होती हैं, लाइक neonatal mortality rate is as well as प्रेग्नेंट लेडीज जो कि डिलीवर कर रही होती हैं, उनका मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा होता है। कुछ पेरिफेरी ऑफ सम पेरिफेरी ऑफ पंजाब एंड खैबर पख्तूनख्वा, इवन सिंध। The use of preventive health measures such as contraceptive को बुरा समझा जाता है, तो at that time क्या होगा, when a female is bearing or is reproducing lot of lot of children, अब उनको एक जो उसका हस्बैंड है वो लुक आफ्टर कर रहा है, तो ऑब्वियसली इकोनॉमी के ऊपर भी बर्डन है और पेरेंट्स के ऊपर एक बर्डन है, और सोशल फैक्टर उनकी हेल्थ को भी अफेक्ट करेंगे, और and it will affect on overall community, it will also affect overall community because of that कि population increase हो रही है। Now, working condition, manual occupation associated with high rates of mortality and morbidity. Unemployment is associated with high rates of morbidity and mortality. Obvious reason है। That's why demographic is so important. Before taking history, demographic क्या होती है बेटा?
डेमोग्राफी आई थिंक आपने अभी प्रैक्टिकल नहीं किए, बीइंग अ सेकंड ईयर स्टूडेंट, और आपका हमारे साथ एक्सपोजर भी नहीं हुआ है सच। लेकिन ये कि डेमोग्राफी मैं ब्रीफली आपको बताती हूँ। इसमें हम नेम, एज, ऑक्यूपेशन, और उससे पूछते हैं पेशेंट से आप कहाँ से आए हो, किस रिलीजन से बिलोंग करते हो, आपका बिजनेस क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है। तो ये सारी की सारी चीजें बेसिकली डेमोग्राफिक होती हैं, और इससे आपको क्या होता है, आइडिया हो जाता है कि पेशेंट कितना वेल ऑफ है, किस टाइप की डिजीजेस ज्यादा प्रोन है। ठीक है, तो ये आपकी डेमोग्राफिक बिफोर टेकिंग हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। अंडरस्टैंड? एनी प्रॉब्लम? Any problem, beta? I can't understand fingerprints. Manahal, what do you want to say? No, okay. Thank you. No problem. Now we are going towards social groups. ये वही group में. All societies are socially stratified and their members occupy different positions in social structure. Stratification by social class or by gender is always linked to power relation between groups and to difference in classes to resource. Stratification is division of society into hierarchical order. आपकी जो सोसाइटी है वो सोशल ग्रुप में होती है, आप खुद ग्रुपिंग करते हो, दैट इज ग्रुपिंग इज अ हेल्दी एटीट्यूड। बेसिकली ग्रुपिंग क्या होती है, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी जो बाकी हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ, दैट इज मस्ट। क्योंकि आपको जब आप सोशल ग्रुपिंग करते हो तो आपको बहुत सारी मॉरल सपोर्ट मिलती है, आपको फिजिकल सपोर्ट मिलती है फ्रॉम योर ग्रुप। कहीं पे आप शिफ्ट हो जाते हो, सपोज आप हॉस्टल में चले जाते हो, तो हॉस्टल में ग्रुप्स होते हैं डिफरेंट स्टूडेंट्स के। एक बहुत ज्यादा पढ़ने वाले बच्चों का ग्रुप होता है, एक मस्जिद में जाने वाले बच्चों का ग्रुप होता है, एक उन स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है जो कि थोड़ा लेस टाइम में कवर करने, सिलेबस को कवर करने की आदत होती है। अगर आप ग्रुपिंग, प्रॉपर ग्रुपिंग नहीं बनाओगे तो आप साइकोलॉजिकली स्ट्रेस में आ जाओगे। इफ स्टूडेंट हु हैज लो आईक्यू, या फिर वो बहुत देर से समझता है, अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, उस स्टूडेंट के साथ रह रहा है जहाँ पे जिसका आईक्यू बहुत हाई है, दैट इज गॉड गिफ्टेड, तो वो डिप्रेशन में आ जाएगा। सो दिस ग्रुपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी ग्रुपिंग तो एक और भी होती है, दैट इज पिंक लिस्ट ग्रुपिंग। पिंक लिस्ट ग्रुपिंग आपको मॉरल सपोर्ट देती है कि मैं अकेला नहीं हूँ, देयर इज लॉट ऑफ मेंबर्स। तो आप वो जो अगर आपकी सप्ली आ गई है, आप पास हो गए, तो वो आपकी ग्रुपिंग हो जाती है, दैट विल आल्सो अफेक्ट ऑन योर फिजिकल एंड मॉरल सपोर्ट, जो कि आपको दूसरों से मिलती है। अब ग्रुपिंग टू टाइप्स की होती है, प्राइमरी ग्रुपिंग एंड प्राइमरी ग्रुप होती है, सेकेंडरी ग्रुप होते हैं। इट इज रिटन इन योर बुक, और ये समटाइम्स बेटा एससीक्यू आ जाता है आपको, तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी ग्रुप स्मॉलर इन साइज, हाई लेवल ऑफ इंटीमेसी अमंग द मेंबर, रिलेशनशिप ऑफ पर्सनल। जस्ट टेक एग्जांपल, अपनी इंटरेस्ट की एग्जांपल लो कि वो जो पिंक लिस्ट में स्टूडेंट्स हैं उनका ग्रुप है, स्मॉलर इन साइज है, हाई लेवल ऑफ, एक दूसरे के साथ आपकी इंटीमेसी बहुत ज्यादा है, एक दूसरे के बहुत करीब हो। रिलेशनशिप्स आर पर्सनल्स, आपके पर्सनल रिलेशनशिप है, आप एक दूसरे शेयरिंग, एक दूसरे की बातें शेयर करते हो, जो डांट पड़ती है उसको शेयर करते हो। फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन बिटवीन मेंबर्स, मेंबर्स आर एक्सेप्टेड रिगार्डलेस ऑफ हु दे आर। ठीक है, यहाँ पे आपका जो ग्रुप बना हुआ है, यू आर नॉट बाउंड ऑफ दैट कि हमने सिर्फ मुस्लिम स्टूडेंट हो, सिर्फ सुन्नी स्टूडेंट हो, सिर्फ शिया स्टूडेंट हो। नो,
आप यहाँ पे आपका जो ग्रुप बना हुआ है रिगार्डलेस ऑफ हु दे आर, एग्जाम्पल फैमिली ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हो सकता है आपका, कमेटी डालने के लिए आंटियां कोई ग्रुप बनाती हैं, फीमेल्स ग्रुप बनाती हैं, दैट इज अगेन ग्रुपिंग इन अ फैमिली। आपका एनी अदर ग्रुप, क्रिकेट खेलते हो, इकट्ठे खेलते हो, तो नेबरहुड में एक बॉयज का ग्रुप बन जाता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट के कोई जूनियर क्लास में है, कोई सीनियर क्लास में है, लेकिन वो जो नेबर्स में या कॉलोनी में जो बॉयज क्रिकेट में इंटरेस्ट लेते हैं उनका एक ग्रुप बना होता है। जो वीडियो गेम्स में एक दूसरे के साथ ग्रुपिंग कर रहे होते हैं, अगेन इट इज अ ग्रुप। ठीक है, तो ये आपकी स्मॉल ग्रुपिंग होती है और ये आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ पे भी इफेक्ट करती है एंड योर फिजिकल हेल्थ पे भी होती है। जहाँ कहीं आपको सपोर्ट चाहिए होती है तो सपोर्ट भी मिल जाती है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल जाती है यहाँ पे ग्रुपिंग में। नाउ कम फॉर द सेकेंडरी ग्रुप, usually large in size, less intimacy among the members, relationships are formal, limited contact between members are selected on the basis of what they can do for the group। यहाँ पे क्या है, ग्रुप्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के ग्रुप्स हैं, political parties के groups, anyone who is having affiliation with PTI or with नून लीग। अब आपका एक ग्रुप है फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, आपका वो जो ग्रुपिंग है वहाँ पे आपको क्या पता चलता है कि आप ग्रुप में होते तो हो, बट इट इज सो लार्ज कि वो इंटीमेसी नहीं होती, रिलेशनशिप बहुत फॉर्मल होते हैं। अगर आप कहीं पे मिल भी जाते हो तो आप ऑब्वियसली एक दूसरे को पर्सनली नहीं जानते, तो वो एक फॉर्मल रिलेशनशिप होता है, कॉन्टेक्ट मेंबर्स के दरमियान में कॉन्टेक्ट नहीं होता। सपोज आप कहीं चले जाते हो, आउटसाइड पाकिस्तान चले जाते हो, तो वहां पे पाकिस्तानी एक लोगों का ग्रुप होता है। वो जो पाकिस्तानी लोगों का ग्रुप है, पाकिस्तान जो हु आर बिलोंग फ्रॉम पाकिस्तान एंड मुस्लिम, तो अब वो जो कम्युनिटी है बेसिकली वो इतना लार्ज ग्रुप होते हैं कि आपको जस्ट यू हैव एफिलिएशन, एक मॉरल सपोर्ट आपको होती है एट द टाइम व्हेन यू आर इन डिफिकल्ट सिचुएशन, तो वो ग्रुप कंबाइन हो जाता है, बट इंटीमेसी नहीं होती, रिलेशनशिप आपके पर्सनल नहीं होते। तो बोथ ग्रुप आर अफेक्टिंग ऑन योर मॉरल सपोर्ट, ऑन योर, यहाँ पे अगर कोई डिजीज होती है, मुस्लिम्स आर लेबल्ड विद एनी स्टिग्मा, तो वहां पे यू आर टुगेदर। ठीक है, तो ये मॉरल जो सपोर्ट होती है दैट इज अ हेल्दी एटीट्यूड, और ये ग्रुपिंग होनी चाहिए, इट मस्ट बी। जेंडर, mortality and morbidity. Men tend to have life-threatening chronic diseases in which uncertainty and risk of death is large, whereas the women tend to have more disabling conditions such as rheumatoid arthritis, multiple sclerosis, fibromyalgia worsens suddenly but typically have lengthy trajectory। अब क्या है कि मेंस का क्या होता है, मेन जो होते हैं वो बीइंग अ मेल, हमारी सोसाइटी का एक ट्रेंड है कि मेल्स उनके इमोशंस को सप्रेस किया जाता है। इफ दे वांट टू वीप एट एनी ओकेजन, उनको ये कहा जाता है, कोई छोटे होते ही कहा जाता है ये वही लड़के तो रोते नहीं है, मतलब आई डोंट नो why it is going like that, because ये है कि उनके इमोशंस को जब सप्रेस किया जाता है they become less emotional with time। और वो जो लेस इमोशनल, वैसे ब्रेन का स्ट्रक्चर भी अल्लाह ताला ने कुछ ऐसा बनाया है where the females are more emotional and men are less emotional। limbic system, there are more dendroids and neuronal complexity in female as compared to men। अब वो जब लेस इमोशनल होते हैं वो अपनी डिजीज को एक्सपोज नहीं करते, जब अर्ली फेजेस पे डिजीजेस होती हैं
तो उनको वो रजिस्टर नहीं करते, उसको मैनेज नहीं करते, हॉस्पिटल्स में नहीं जाते, उसकी प्रॉपर केयर नहीं करते, तो वही जो डिजीजेस होती हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं, और जब वो क्रोनिक स्टेज में आ जाती हैं तो रिस्क ऑफ डेथ ज्यादा होता है. Another factor, cardiac diseases are more common in male because gender wise female are protected up to 50 years of age due to some hormonal changes in their body like estrogen and progesterone factor. वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं बीइंग अ फीमेल, जबकि मेन जो होते हैं आफ्टर 40 दे आर प्रोन फॉर द हाइपरटेंशन एंड कार्डियक डिजीजेस. तो उनके अंदर कार्डियक डिजीजेस के रिस्क ज्यादा होते हैं, हाइपरटेंशन ज्यादा होता है. मोर्टेलिटी रेट ज्यादा क्यों होता है मेन में? बिकॉज वो अपनी इस जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है और सोशल फैक्टर है, सोशल फैक्टर में बिकॉज उनको सोशल फैक्टर क्या कहते हैं कि वो रिपोर्टिंग नहीं करते अपनी डिजीजेस की. साइकोलॉजिकली अगेन वो क्या है, सिप्रेस हैं, वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते. अपनी डिजीज अगर कहीं पे कोई इलनेस है, कोई हेडेक हो रहा है, बॉडी एक्स हो रही है, दे विल नॉट मेंशन इट. बट फीमेल्स morbidity rate is more. Morbidity is reporting of the disease and mortality is basically your death rate. Understand? Mortality is death rate and morbidity is reporting of disease. Understand? No message. Okay, thank you. Thank you everyone. थैंक यू. बेटा कुछ अंडरस्टैंडिंग हो रही है? बोरिंग है, आई नो दैट दिस टॉपिक बीइंग अ डॉक्टर थोड़ा सा बोरिंग है, मैं भी इसको अंडरस्टैंड करती हूँ इस बात को, बट हमने पढ़ना तो है, बिकॉज बायोसाइको सोशल मॉडल हमने पढ़ना है, तो इस टॉपिक को तो पढ़ना है. और फिर दूसरा ये जरूर पढ़ना है बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस, और इसमें से आपके सेक्शन डी में से बहुत सारे एमसीक्यूज और एससीक्यूज आते हैं. ठीक है. नो, रोल क्या होता है? आपके रोल्स क्या होते हैं? आप योर रोल इज यू आर गुड डॉटर, यू आर गुड स्टूडेंट एंड यू आर गुड सिस्टर. यही रोल है ना इस वक्त आपके, नथिंग एल्स. यू आर नॉट अर्निंग हैंड, यू आर नॉट अ वाइफ, यू आर नॉट अ मदर. तो आपके रोल, आपका रोल क्या है? यू हैव टू स्टडी. आपने अच्छी डॉटर बनना है, अच्छी बहन बनना है. इट्स ओके, आपने अच्छी डॉटर, यही आपके रोल्स हैं. अगर if refers when one individual has multiple roles which have conflicting demands of individual. If a mother who is वो डॉक्टर भी है, बच्चों को लुक आफ्टर भी कर रही है, वो डॉटर इन लॉ भी है, वाइफ भी है, एट द सेम टाइम टीचर भी है, तो ये सारे के सारे जब मल्टीपल रोल्स आएंगे तो समटाइम्स ऐसा होता है कि इट इज कन्फ्लिक्टिंग डिमांड ऑफ इंडिविजुअल. अब वहां पे क्या आ जाते हैं, अगर आप यू आर नॉट अ हेल्दी पर्सन, आप अपने तमाम रोल्स में प्रॉपरली बैलेंस नहीं रख रहे, तो एट दैट टाइम यू आर ऑल द टाइम यू आर worried about your children or all the time you are worried about, तो आप कहाँ पे कर रहे हो? आप अपनी प्रोफेशन को सेक्रीफाई कर रहे हो. अगेन इफ यू आर टू मच प्रोफेशनल और कैरियर ओरिएंटेड, तो अब आप अपनी फैमिली को लाइक उनके साथ जस्टिफाई नहीं कर रहे. ऐसे ही है. तो रोल कन्फ्लिक्ट, sometimes when you have multiple roles, then there is role conflict. तो यहाँ पे क्या है, होम्योस्टेसिस, आपके सारे सिस्टम जो हैं आपने हर जगह बैलेंस रखना होता है, अदरवाइज आपकी हेल्थ अफेक्ट हो जाएगी. रिलीजन. Research have shown a positive association of religion spiritual involvement with improved health outcome and longer life.
रिलीजन आपको क्या होता है कि जब स्ट्रेस की आपको दी जाती हैं स्ट्रेस रिड्यूसिंग फैक्टर्स में एक फैक्टर ये है कि स्पिरिचुअल एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हो जाओ। रिलीजन, आप नमाज पढ़ो, रोजे रखो, दैट विल इम्प्रूव हेल्थ आउटकम। बेसिकली आपका जो रिलीजन है वो आपको आपके अंदर इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है, आपके अंदर डिप्रेशन कम होगा, स्ट्रेस कम होगा। जब आप अपने अल्लाह पे छोड़ दोगे बहुत सारी बातें कि वेयर यू आर अनएबल टू कोप, तो वहां पे आप अपने डिसीजंस को अपने रब पे छोड़ दोगे, व्हाट विल हैपन? अब यू विल बी सेटिस्फाइड। अब यहाँ पे सेटिस्फेक्शन होगी तो क्या है, सेटिस्फेक्शन के साथ आपका स्ट्रेस कम होगा, स्ट्रेस कम होगा, इम्यूनिटी आपकी बेहतर हो जाएगी, और क्या होगा, इम्प्रूव्ड हेल्थ आउटकम होगा और लॉन्गर लाइफ स्पेन होगा। और इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि जिन लोगों में स्पिरिचुअल एक्टिविटी, रिलीजियस एक्टिविटी ज्यादा होती हैं, उनमें सुसाइडल टेंडेंसी नहीं होती। Spiritual activity, as we have seen that male and female both are involved, but in spiritual activity it is seen that females are more involved. Now the family system. Family system, there are 4 type of family system. Better listen it carefully. Joint family system, the traditional joint family is where grandparents, parents, siblings, cousins live together. It is becoming increasingly rare in Pakistan. पहले बहुत ज्यादा होता था ये सिस्टम, जॉइंट फैमिली सिस्टम हमारे गांव में, हमारे पेरिफेरी पे, बट नाउ इट इज लेस। अब कम हो रहा है। अब क्या हो रहा है, ज्यादा क्या हो रहा है, एक्सटेंडेड family system are more common form now in extended family system, where parents, grandparents, mostly paternal means dada dadi aapke, and occasionally unmarried aunts and uncles live in the same house. ठीक है, कोई फूफो है, चचा है जो अनमेरिड हैं, वो रहते हैं। दिस इज कॉल्ड एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम। Single parent family system where one parent, often the mother, resides alone with her children is yet rarity in Pakistan. Thanks God, ये पाकिस्तान में रेयर है, बिकॉज ये वो मैंने कहा था ना कि रोल्स, जब आपके पास मल्टीपल रोल्स होंगे, व्हेन यू आर ओनली वन, यू आर अर्निंग हैंड भी आप हो, आप बच्चों को लुक आफ्टर भी कर रहे हो, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फुली आपके ऊपर है, एक पर्सन के ऊपर ही आर टेकिंग मल्टीपल रोल्स, तो वहां पे स्ट्रेस फैक्टर इंक्रीज हो जाएगा और हेल्थ डिटोरिएट हो जाएगी। सो थैंक्स गॉड इट इज रेयर इन पाकिस्तान। बाहर का कल्चर, एज यू नो, कि उनका कल्चर ही कुछ ऐसा है, देयर आर इवन अनमेरिड पेरेंट्स। तो वो जो अनमेरिड पेरेंट्स हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर चिल्ड्रन, आइदर मदर और फादर, तो वो एलोन है। और ये सिंगल पेरेंट फैमिली सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह इट इज लेस और लेस ही रहेगा पाकिस्तान में। न्यूक्लियर फैमिली वेयर हस्बैंड एंड वाइफ लिव विद देयर चिल्ड्रन, बेसिकली ये इसके कुछ एडवांटेज ज्यादा नजर आ रहे हैं, यहाँ पे हस्बैंड वाइफ और चिल्ड्रन इकट्ठे रहते हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज मोर promoting in Pakistan. चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस, बच्चों को कैसे आप लुक आफ्टर करते हो, परवरिश करते हो। हैव यू सीन अ पिक्चर? प्लीज फोकस ऑन दिस वर्ड, अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेरियन। आप फ्यूचर में जब एमसीक्यूज आते हैं इसको मिस कर देते हो। अभी थोड़ी देर के लिए इस पिक्चर को देखो और ऊपर से पढ़ो, अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेरियन। You can see the difference. I will tell you the difference. लेकिन अभी जो मैंने आपको डिफरेंस बताना है, आपको डिफरेंस ये बताना है
कि अथॉरिटेटिव और अथॉरिटेरियन को आपने मिक्स नहीं करना, ठीक है? अंडरस्टूड? अंडरस्टूड बेटा? होप सो you will not mix it in your MCQs. Now, types of parenting. There are mainly, वैसे तो 4 टाइप्स होती हैं, एक और भी है निग्लेक्टेड पेरेंट्स, लेकिन आपकी बुक में ये लिखी हुई है अथॉरिटेरियन पेरेंट्स, परमिसिव पेरेंट्स एंड अथॉरिटेटिव पेरेंट्स. सो मैं अभी इन्हीं तक स्टिक रहती हूँ. आपको एक 4 टाइप है क्योंकि इंटरनेशनली वो भी है जो कि है निग्लेक्टिंग पेरेंट्स. अब अथॉरिटेरियन पेरेंट्स कैसे होते हैं, परमिसिव कैसे होते हैं, अथॉरिटेटिव कैसे होते हैं? Authoritarian parents impose rules and expect complete obedience. Highly demanding, punitive, too much assertive. बच्चे को बस उन्होंने कहना है कि बस जो मैंने कह दिया. दिस इज माई लास्ट वर्ड. मैंने कह दिया आपने डॉक्टर बनना है तो आपने डॉक्टर बनना है. लाइक दे आर सो मच डिमांडिंग और इतने असर्टिव होते हैं कि वो बच्चों से कुछ नहीं फीडबैक लेते, उन्होंने नहीं लेनी होती. ये बेसिकली अब तो ये हमारा आपकी जनरेशन के पेरेंट्स तो बेचारे हम जैसे पेरेंट्स हैं. वी आर नॉट अथॉरिटेरियन एट ऑल. हम तो वो पेरेंट्स हैं, शायद आगे वो टाइप आएगी. तो अब ये है, ये अथॉरिटेरियन पेरेंट्स मोस्टली हमारे पेरेंट्स टू सम एक्सटेंट, नॉट ऑल पेरेंट्स, थोड़ी सी हमारी मेजोरिटी पेरेंट्स ऐसे होते थे हमारे पेरेंट्स, क्योंकि अथॉरिटेरियन होते थे, बड़े असर्टिव होते थे. वो बच्चों को के ऊपर बहुत कंट्रोल होता था, उनका अच्छा कंट्रोल होता था. उसके बहुत सारे एडवांटेज भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं. आउटकम क्या होता है, बच्चे कैसे निकलते हैं, ये आपकी बुक में नहीं लिखा, तो काइंडली अगर आप लिखना चाहते हो तो इसको आप लिख भी सकते हो. आउटकम लाइक अथॉरिटेरियन पेरेंट्स के बाद हम एक वो जो बच्चे एडल्ट होंगे तो कैसे होंगे, लैक ऑफ इनिशिएटिव पावर, इनिशिएटिव नहीं लेंगे, लीडरशिप नहीं होगी ऐसे बच्चों में, पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी, सोशल इनकम्पिटेंस होगी, सोशल ईक्यू कम होगा, उनका आईक्यू बहुत अच्छा बेशक होगा, वो तो इनहेरिटेड है, लेकिन उनका ईक्यू कम होगा, सोशल इनकम्पिटेंस कम होगी, पुअर कम्युनिकेशन स्किल होंगी एंड लैक ऑफ इनिशिएटिव. इनिशिएटिव नहीं लेंगे बिकॉज आपने उनको इतना डिस्करेज कर दिया है. आप यू आर सो अथॉरिटेरियन, आपने अपनी डिमांड्स और आपकी रिक्वायरमेंट है कि बच्चा आपके अकॉर्डिंगली चले, आपने ही उसको सारा प्रोजेक्ट दिया है कि यू हैव टू डू दिस एंड दिस एंड दिस 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 दैट, आज की आपकी डे की एक्टिविटी ये होनी चाहिए, तो वो खुद कैसे इनिशिएटिव लेगा, होल लाइफ उसके ऊपर इस चीज का इम्पैक्ट होगा, लीडरशिप नहीं होगी. बहुत कम लीडर निकले हैं भाई. नाउ अथॉरिटेटिव पेरेंट्स. बेटा सेकंड पेरेंट्स कौन से आ जाते हैं, अथॉरिटेटिव पेरेंट्स. बेस्ट पेरेंटिंग है, डिमांड्स ओबीडियंस बट आर आल्सो रिस्पॉन्सिव टू देयर चिल्ड्रन. इनकी डिमांड्स भी होती हैं, डिमांड भी होती हैं और साथ रिस्पॉन्सिव होते हैं अपने चिल्ड्रन के. फ्रीडम होती है डिसीजन मेकिंग की. यहाँ पे क्या है, टू साइडेड है, बच्चों से भी वो राय लेते हैं, ओपिनियन बच्चों से भी लिए जाते हैं, बट दे हैव सम रूल्स एंड रेगुलेशन. सपोर्टिंग होते हैं, डिमांडिंग होते हैं, सपोर्ट भी करते हैं. इफ सपोज हैंग आउट पे ही बच्चे ने जाना है तो उसको ये नहीं है कि बिल्कुल फ्रीडम दे देंगे कि हाँ जी आप जाओ, बेशक रात को पार्टी अटेंड करके आओ, 2 बजे आओ, 1 बजे आओ, डजेंट मैटर. नहीं, उसको सपोर्ट करेंगे, छोड़ के आएंगे, या फिर वट एवर उसको एनी हाउ सपोर्टिव इन दैट साइड इन योर एज. ये इस तरह सपोर्टिव होंगे कि आपको परमिशन देंगे, टाइम देंगे कि बेटा बिफोर 10 o'clock कम बैक, ठीक है. दिस इज देयर डिमांड.
तो आप सपोर्टिंग भी हैं, डिमांडिंग भी हैं, आपकी ओपिनियन भी ले रहे हैं, फ्रीडम भी दे रहे हैं, आपको डिसीजन मेकिंग भी दे रहे हैं. यू वांट टू बिकम इंजीनियर, डॉक्टर, वट एवर, इट इज योर डिसीजन. तो आप जब आपके पेरेंट्स अथॉरिटेटिव होंगे तो क्या होगा, मेजॉरिटी पेरेंट्स इन दिस एज, जो आपके पेरेंट्स हैं, अथॉरिटेटिव है मेजॉरिटी. आउटकम क्या है, कोरिलेटेड विद सोशल इनकम्पिटेंस. बच्चे बड़े कॉन्फिडेंट हैं, समटाइम्स हमें लगता है कि हमारे स्टूडेंट ओवर कॉन्फिडेंट हैं. इट्स ओके, दैट्स अ गुड थिंग फॉर योर फ्यूचर. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थोड़ी सी कम देखी गई है. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत सारे पर्सनैलिटी फैक्टर्स भी आ जाते हैं, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स भी अफेक्ट करते हैं. लेकिन अगर अथॉरिटेटिव पेरेंट्स हैं तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेन आपकी बेहतर हो जाएगी. सेल्फ रेजिलियंस अच्छी होगी. आपके कोई भी ट्रॉमा होगा, कोई भी बैड इफेक्ट होगा लाइफ में, तो उसमें आपकी सेल्फ रेजिलियंस अच्छी होगी. अगेन अ गुड थिंग, यहाँ पे लीडरशिप बड़ी अच्छी मिलती है, बिकॉज आपने उनको डिसीजन करना सिखा दिया है. प्लस क्या किया है, आपने उनके डिसीजन को माना भी है. इफ यू आर गिविंग सम रूल्स एंड रेगुलेशन, एट द सेम टाइम्स आपने उनसे डिसीजन लिया है, दे बिकम कॉन्फिडेंट. तो यहाँ पे हमारी लीडरशिप इंशाल्लाह हमें अच्छी मिलेगी. देन कम, अभी के दौर में ये थोड़े से पेरेंट्स ऐसे भी हैं, अ स्मॉल permissive parents submit to children demands. They fulfill their demands anyhow and are not demanding from children. Not a certificate. बेटा आप जो कहते हो हम कर लेते हैं. आपने कहा को रात 12 बजे आना है, 1 बजे आना है, मैंने फ्रेंड्स के साथ घूमना है, गाड़ी लेकर जानी है, मुझे नई गाड़ी ले दो, नई मोटर बाइक ले दो. इट्स ओके. बिल्कुल असर्टिव नहीं होते. और इनकी बैकग्राउंड में इनकी भी कोई रीजन होती है. आइदर दे बिलोंग टू वेरी स्ट्रिक्ट, इनके अपने पेरेंट्स बहुत अथॉरिटेरियन होते हैं, या फिर ये और फैक्टर्स ये होते हैं कि ये दे आर नॉट गिविंग टाइम टू देयर चिल्ड्रन. और जो टाइम वो दे रहे हैं वो सारा का सारा टाइम वो क्या कर रहे हैं, उनकी डिमांड्स को फुलफिल कर रहे हैं, सो दैट कि वो उसको कंपनसेट कर रहे हैं. वो जो टाइम पेरेंट्स बच्चों को नहीं दे रहे, दे आर बिकम परमिसिव पेरेंटिंग. तो यहाँ पे अगेन पुअर सेल्फ कंट्रोल होगा. बच्चे बहुत गुस्से वाले, वो हर एक से अपनी डिमांड पूरी करवाएंगे. तो पुअर सेल्फ कंट्रोल होगा, बदतमीज आउटकम होगा. लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अदर, नॉन कॉम्पिटेंट, नो लीडरशिप. अगेन दिस इज बैड पेरेंटिंग, परमिसिव पेरेंटिंग. ये निग्लेक्टिंग है पेरेंटिंग, जो कि आपकी बुक में मेंशन नहीं है, बट आई एम टेलिंग यू ब्रीफली. अनइन्वॉल्व पेरेंट्स, नॉन सपोर्टिव, नॉन डिमांडिंग, वो अपने करियर में अपने कामों में इन्वॉल्व हैं. बच्चे जो हैं वो डिप्रेशन में चले गए हैं. पुअर सेल्फ कंट्रोल होगा, अगेन लेस कॉम्पिटेंसी होगी. पॉजिटिव अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग इज पॉजिटिव. लिसन, अब आपको जब बेस्ट पेरेंटिंग का एमसीक्यू आएगा तो वो क्या आपका होगा, अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग, नॉट अथॉरिटेरियन, नॉट परमिसिव. ओके. असर्टिव होते हैं अपना, उनका असर्टिवनेस का क्या मतलब होता है, उनका अपना रोप होता है. फ्लेक्सिबल होते हैं बट नॉट परमिसिव. फ्लेक्सिबिलिटी होती है, पेरेंट्स बच्चों की आप सुनते हो. एम्पैथेटिक होते हैं, बच्चों की डिमांड्स को अंडरस्टैंड करते हो. डेमोक्रेटिक होते हैं, बच्चों के साथ बैठ के डिसीजन करते हैं. गुड लिसनर, ऑब्वियसली दिस इज मस्ट. कोई भी आपकी ऐसी जगह व्हेन चिल्ड्रन आर फ्री, तो आप उनकी डिमांड्स और उनकी बातों को प्रॉपर्ली सुनो, स्कूल की बातों को सुनो. गुड ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर मीन्स दे हैव गुड आईज ऑन देयर चिल्ड्रन एंड good eyes on their friend. Nurture and forgiving nature rather than punishing. ठीक है, पनिश नहीं करते. डॉक्टर मदर्स के क्या प्रॉब्लम होते हैं, थोड़ा टाइम देती हैं पेरेंट बिकॉज ऑफ लॉन्ग ड्यूटी टाइम्स. उनके जो
घर को टाइम होता है वो कम दे सकती हैं. तो आपके adopted mothers who may spend up to 36 hours at a stretch on call and away from their children, they become guilty for their absence. Guilty होती हैं अपनी absence से and try to overcompensate in the time they do spend with their children. They may do this by trying to stuff their children with food and even worse, spend all their time with their children teaching them coursework or completing homework. ठीक है. तो अब यहाँ पे sometimes ये doctors mothers are also permissive mothers. ये जो मैंने आपको बताया था permissive because they have no time. अब वो children की पूरी डिमांड पूरी कर रही हैं. तो at that time again it is wrong parenting, not a good parenting. This problem with this is that time previously spent with the mothers learning values and attitudes and having fun is now entirely monopolized by studying. घर आए तो बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, उनको मल्टीपल टॉयज दिए खाने के लिए, ऐसी चीजें दी जो कि बच्चे डिमांड कर रहे हैं. तो एट दैट टाइम अगेन बच्चों का जो आप है अथॉरिटेटिव नहीं होगे, यू आर नॉट गिविंग टाइम टू योर चिल्ड्रन. बच्चों की आप यू आर नॉट गुड लिसनर, नॉट assertive. To some extent assertive होना must in all your life. बेटा assertiveness is good in all fields. अगर assertiveness बिल्कुल नहीं होगी तो अगेन आपकी हेल्थ के ऊपर बैड इफेक्ट होगा. नो थैंक यू. Understand? Home time, okay. Manahal, it's okay. 2 minutes late, I think, only. Okay, Allah Hafiz, everyone.